discussed about the corporations, right? In last class we discussed about the corporations and company, public and private company, right? Who is going to tell me about that? Who is going to tell me about it? कौन मुझे बताएगा इसके बारे में? Raise your hand. Who is going to tell me about the corporate? Please. So who is going to tell me about what we discussed in the last class? Who is going to tell me about the limited liability company? What are the benefits and what are the disadvantages and advantages? What is the meaning of corporations? What are the various advantages of that? And what is public and private company? Who is going to tell me about it? Raise your hand. Unmute yourself, beta. Unmute yourself. First, we discussed about the limited liability company, which is the blend of partnership and company, which is protection from liability to the owner in case of dissolution. Personal belonging of partner is not required. It is not famous in India, but it is famous in US. Like partnership, there is no separate legal entity, so we can take tax advantages. Like company, the liability is limited. It is a business structure for private company in US. Advantages of limited liability company is that it provides the flexibility and protection. And the drawback is it avoids double taxation. And registration is required, which is a complex structure. It need to follow all government rules and regulations, and need to disclose the book of account. Okay. Next point. Ma'am, What? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 पीपल हो सकते हैं और मिनिमम 2 और मिनिमम 1 लाख इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम नो लिमिट होता है मैम। और पब्लिक में मैम मैक्सिमम में भी नो लिमिट है, मतलब कितने भी पर्सन आ सकते हैं और मिनिमम में 7 और मिनिमम डायरेक्टर होना चाहिए 3 मैम। इसमें शेयर इशू होता है पब्लिकली। Okay. Are you done, Roshan? Yes, ma'am. Okay. So we discussed about the different kind of business organization, that is limited liability company, corporations, public company, private company. Who is going to tell me about the partnership and sole proprietorship? Raise your hand. Partnership and sole proprietorship के बारे में मुझे कौन बताएगा? Raise your hand. Who is going to tell me about it? Yes, batch 2, roll number 22. बताइए सोना। यस मैम। बेटा पार्टनरशिप मतलब 2, उसमें दो लोग मतलब 2 मोर ऑनर्स होते हैं, मतलब अ सोल प्रोप्राइटर हैज 1 ऑनर व्हाइल पार्टनरशिप हैज 2 और मोर ऑनर्स। चलिए बताइए आरुषि। यस आरुषि। यस मैम। नो मैम। is an individual who own and control by one person. The features of sole proprietorship is one-man control, single ownership, unlimited liability, undivided risk, that is profit or loss, no government regulation according to establishment of Shop Act, and no separate entity of the firm. Okay, next, Roshan, tell me about partnership. पार्टनरशिप 2 और मोर पीपल, म्यूचुअल एजेंसी होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर और इंटरेस्ट शेयर करने में, आउटकम्स ऑफ एग्रीमेंट होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, फिर ऑलमोस्ट गुड फेथ होता है, नो लीगल एंटिटी होता है, और ये 1932 एक्ट के द्वारा मतलब किया गया है और मिनिमम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेगुलेट द पार्टनरशिप। यस, 2 लोग होने चाहिए मैम और मैक्सिमम 20 और बैंक के केस में 10 होने चाहिए मैक्सिमम।
ठीक है, so we already completed the types of business organization. Today we are going to move toward the small scale industries registration. What are the various registration process of that? What kind of document required for the registration? What are the process and what are the benefits and objectives of this registration? ठीक है, तो small scale industries जो हो सकते हैं वो आपके कोई भी हो सकते हैं. लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया नहीं था, इसमें कुछ भी लिखवाया नहीं था ना लास्ट क्लास में. No. ठीक है, सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपके कोई भी हो सकते हैं. बेकरीज हो गए, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, लेदर बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए आपके. उसके अलावा बहुत सारे सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट के सर्विसेज वगैरह, ये बहुत सारे आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं इनमें इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बहुत कम होता है. ठीक है, बहुत कम आपको इन्वेस्ट करने का जरूरत है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपके टाइनी इंडस्ट्रीज आ जाते हैं, आपके माइक्रो इंडस्ट्रीज आ जाते हैं, आपके विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आ जाते हैं. ये सारे आपकी लगभग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पार्ट हैं. ठीक है, सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, बिकॉज इट इज बेसिकली अ बैकबोन फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है एंड साथ ही साथ मोटिवेट करती है बेसिकली लोगों को विलेज रूरल एरियाज में, ताकि वो इंडस्ट्रीज वगैरह में इंडल्ज हो. ठीक है, इंडस्ट्री स्टार्ट करे, एंटरप्रेन्योर्स बने. क्लियर है? सो यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसका रजिस्ट्रेशन जो है दैट इज टोटली ऑप्शनल. इफ यू वांट टू रजिस्टर देन दैट इज फाइन. इफ यू डोंट वांट टू, that is also okay. But if you will register your basically industries, in that case you will be basically a legal entity, right? And after that the benefits are also applied in your sector, right? तो अब यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम उसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं. ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है बेसिकली वो बेसिकली कितना होना चाहिए, उसका मिनिमम जो होना चाहिए, जो मैक्सिमम होना चाहिए दैट इज 1 करोड़. ठीक है, 1 करोड़ होना चाहिए. और आपके यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, ये बेसिकली है इंसेंटिव्स के लिए और सपोर्ट सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट हैं जितने भी हमारे इंडिया में, उनके पास एक यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, यूनिफॉर्म विच इज नॉट चेंज विद द अदर इंडस्ट्रीज, यानी कि सबके लिए सेम प्रोसीजर है. ठीक है, same procedure is there for the registration process of the small scale industries. ठीक है, उसके लिए उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स बनाए हैं, गाइडलाइंस बनाए हैं, और ये कभी कभार थोड़ा मॉडिफाइड भी होता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टेट. मतलब अलग अलग स्टेट में मे बी इट इज पॉसिबल दैट देयर इज सम मॉडिफिकेशन इन द प्रोसीजर एंड रूल ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन. ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं ज्यादातर वो सपोर्ट जो किए जाते हैं वो ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया जाता है. कुछ सब्सिडीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से बेसिकली प्रोवाइड करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, बट दैट इज अ टोटल स्टेट कॉस्ट. मतलब स्टेट के लिए बेसिकली यहाँ इसका यूटिलाइजेशन, मतलब स्टेट ज्यादातर इसको सपोर्ट करती है. ठीक है, अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और एक मैं पॉइंट आप लोग को नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊंगी, दैट इज सीडो, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज दैट, वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? सो पहले लिख लीजिए, व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ द कैरिंग आउट द एसएसआई रजिस्ट्रेशन. व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ एसएसआई रजिस्ट्रेशन, क्या क्या बेनिफिट्स है? तो इसमें लिखिए और reduced bank loan interest rate, reduced bank loan interest rate, reduced bank loan interest rate, reduced bank loan state, reduced bank loan interest rates. ठीक है, so when you will register your industries, after that what you will get a registration certificate. ठीक है, एक registration का certificate आपको मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद आपको पहला बेनिफिट ये होगा कि द बैंक लोन इंटरेस्ट रेट मे बी दैट विल बी डिक्लाइन और दैट विल बी रिड्यूस. ठीक है, अगर आज हम कोई होम लोन लेते हैं या कार लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, so we have to pay a hefty interest rate, right? But in the case of the small industries, due to that is a मतलब गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट बेसिकली इनिशिएट करती है. so बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह के थ्रू अगर कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज जो एमएसएमई के प्रोजेक्ट्स वगैरह जो इनिशिएटिव्स है उसके थ्रू अगर बैंक लोन लेती है तो मे बी उनका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कंपैरेटिवली अदर फॉर्मल वे ऑफ बैंकिंग में, मतलब अदर जो सेक्टर से आपको रिड्यूस या कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है.
रजिस्टर्ड है इन दैट केस, ठीक है. सो फर्स्ट यू विल गेट द बेनिफिट इन द इंटरेस्ट रेट, ठीक है. सेकेंड बेनिफिट इजी एक्सेस टू क्रेडिट. रोशन लिखिए बेटा. Easy access to credit. Easy access to credit. Easy access to credit. What does it mean? That you will easily able to get the loan. ठीक है. If you want any kind of sector, मतलब any kind of industry, if you want to open, that is basically mentioned under the MSME, right? So in that case, it might be possible that you will easily able to get the loan from the bank. बहुत easily आपको loan मिल जाएगा अगर आपका firm registered है. ठीक है. Next one, third point. Access to government tenders. Access to government tenders. Access to government tenders. TENDERS. Access to government tenders. What does it mean? See, government have so many projects. बहुत सारी government के पास project होता है. Either that is for the construction, either that is for the other infrastructure, that is for the meal. बहुत तरीके के schools, बहुत तरीके के उनके projects होते हैं, ठीक है. उसके लिए क्या होता है कि they are giving the tenders to the private companies और कुछ industries को tenders provide करते हैं, ठीक है. अगर आपका फॉर्म, अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो रजिस्टर्ड है तो आपको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं अगर इन दैट केस अगर आपका जो अमाउंट है कंपैरेटिवली टू अदर इंडस्ट्रीज आप कम ले रहे हो पे. मतलब टेंडर एक ऐसा सीन होता है जो पूरा बिडिंग पे बेस्ड होता है. बिडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोग टेंडर भरते हैं और उसके बाद उसको पास ऑन करते हैं गवर्नमेंट के पास, ठीक है. गवर्नमेंट उसको एक बार पूरा रिव्यू करती है, जितने भी इंडस्ट्रीज है उनके टेंडर्स को, जो सबसे कम पैसे में आपको फैसिलिटी देने के लिए रेडी होता है, जिसका सबसे लेस प्राइस होता है, ऐसे केस में गवर्नमेंट का टेंडर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को या कंपनी को पास ऑन हो जाता है. तो यहाँ पर अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं, यानी गवर्नमेंट का काम और टेंडर भी आपको मिल सकता है. क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया सबको? टेंडर क्या होता है? यस विक्रम. नेक्स्ट पॉइंट. Next, concession and rebates that reduce the cost of acquiring patents. Concession and rebates that reduce the cost of acquiring patents. What is the meaning of patent? पेटेंट क्या होता है बेसिकली, जैसे कभी भी कोई कंट्री में या किसी भी कंट्री में अगर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, कोई मशीनरी रेडी की जाती है, ठीक है. अभी तो ये दोनों टर्म में आएगा, फिजिकल मशीनरी, सॉफ्टवेयर भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं. तो उनके ऊपर ना पेटेंट होता है, पेटेंट राइट होता है, ठीक है. पेटेंट राइट में क्या होता है, वो 20 साल तक कोई भी उनके टेक्नोलॉजी को बेसिकली विदाउट पेइंग अमाउंट आप उसको यूज नहीं कर सकते. उनकी मशीनरी, उनका जो बेसिकली टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उसको आप एक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है. तो उसके लिए फी पे करना पड़ता है. अगर वी वांट टू यूज दैट तो हमें एक फी पे करना पड़ता है. तो ऐसे केस में अगर कोई इंडस्ट्रीज है जो कोई पेटेंट राइट मशीनरीज और टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहती है, तो उस केस में जो फी होगा, जो नॉर्मल फी होगा, मान लीजिए कि फी आपका है 5 लाख रुपए, तो ऐसे केस में 5 लाख रुपीज में आपको कॉन्सेशन मिल जाएगा. कॉन्सेशन एंड रिबेट्स which is provided by government for supporting the small scale industries if that is registered one. So concessions and rebates are provided on the जो पेटेंट की फी अमाउंट होता है ना, उस पे हमें कॉन्सेशन मिलेगा. So these are some benefits and the other benefits. अब दूसरा बेनिफिट और लिखिए, और क्या क्या बेनिफिट मिलेगा. What are the other benefits? Preference for government certification, and license. What does it mean? That अगर आप रजिस्टर होंगे तो गवर्नमेंट के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है. इट विल वर्क लाइक एविडेंस. वो एक एविडेंस की तरह काम करेगा कि कल को इन द केस इफ एनीवन कैन शू यू, शू मतलब कोई आप पे केस करता है या कुछ भी ऐसा इंडस्ट्रीज पे कोई भी केस फाइल होता है, तो इन दैट केस द गवर्नमेंट विल डेफिनेटली, मतलब अगर आप एक लीगलाइज्ड बॉडी हो, आप
रजिस्टर्ड हो, तो इस केस में यू कैन ऑल्सो फाइल द केस, आप भी फाइल कर पाइएगा केस, यू कैन बेसिकली आप अपने बोल सकते हैं ना केस को लड़ सकते हो। बट अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो ऐसे केस में हो सकता है कि आपके पास कुछ लीगल ऑथोरिटीज ना हो, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि आप जो इंडस्ट्री चला रहे हो दैट इज द लॉफुल बिजनेस एंड दैट इज द लीगलाइज्ड एंटिटी एंड दे विल आल्सो प्रोवाइड यू सर्टिफिकेट। ठीक है, तो एक सर्टिफिकेट विल वर्क लाइक अ एविडेंस फॉर यू। next point what is the next benefit? You will also get the incentive of the state, yani state government incentives are also provided to you. State government incentives are also provided to you. So these are some benefits which is basically basically provided when your small scale industry is registered. Okay, क्या क्या मैंने points बताया, how many benefits we discussed? There are 6 benefits. ठीक है, 6 बेनिफिट्स होंगे आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, सी सम पॉइंट्स आर आल्सो सो व्हाट आर द वेरियस एलिजिबिलिटी, क्या होना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कुछ चीजों में बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में एंड सर्विस एंटरप्राइज में, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में जो माइक्रो होना चाहिए, मैंने पहले बताया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ये पार्ट है माइक्रो आपका, तो माइक्रो जो होना चाहिए उसमें वही प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपके 25 लाख से 5 करोड़ तक में होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में। ठीक है, एंड द सर्विस इंडस्ट्रीज जो है उसमें होना चाहिए आपका 10 लाख से कम नहीं माइक्रो में, स्मॉल में 10 से 2 करोड़, 10 करोड़ मतलब 2 करोड़ से 10 करोड़, एंड मीडियम में होना चाहिए 2 से 5 करोड़। लेकिन इन्होंने आपके बाकी इंटरप्राइजेस के बारे में बोला है आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 1 करोड़ होना चाहिए, जिसके अंडर में आएगा विलेज इंडस्ट्रीज, आपके कोटेज इंडस्ट्रीज आ जाएंगे आपके, ठीक है, टाइनी इंडस्ट्रीज आ जाएगा, ये सब हम लोगों ने पहले भी कर लिया है। So what will be the eligibility? The amount is not less than 1 crore in the small industries as well as the tiny industries में 25 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपका जो 25 लाख रुपए तक आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। So ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपका आ जाएगा नॉट लेस देन 1 करोड़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यही है, अप टू 1 करोड़, सॉरी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? बेसिकली 1 करोड़ रुपया उसमें होना चाहिए, 1 करोड़ रुपीज, ठीक है, अप टू 1 करोड़ रुपीज होना चाहिए। क्या क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है इसको लिख लीजिए। राइट द रजिस्ट्रेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या क्या है? सबसे पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अप्लाइंग फॉर द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, अप्लाइंग फॉर द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, अप्लाइंग फॉर द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंडर में कुछ पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा बेसिकली यूनिट्स को। ठीक है, और जो इसके लिए आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। इसमें 2 लाइन लिखिए, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो व्हाट आर द वेरियस, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, 3 ब्रॉड स्टेप्स हैं, जिसमें से मैंने पहला बताया आपको, बेसिकली अप्लाइंग फॉर द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, अप्लाइंग फॉर द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, जो लिखिए इसमें, द एसएसआई सर्टिफिकेट, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सर्टिफिकेट is given to the units, is given to the units in the pre-operative period, in pre-operative period, in order to help them secure working capital, अप्लाइंग फॉर द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है? एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की आपको जरूरत पड़ सकती है अगर आप बेसिकली कभी भी कोई यूनिट को शुरू करने से पहले यू जस्ट नीड टू अप्लाई फॉर द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। एक बार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें इसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। मतलब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऐसे तुरंत नहीं होगा, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसमें आपको सबमिट करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का, और उसके साथ साथ एक फिजिकल इंस्पेक्शन होगा आपका।
यानी कि उस आपकी जो प्लेस है, आपका जो इंडस्ट्री है, उसका एक फिजिकल इंस्पेक्शन होगा, यानी कुछ लोग आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्ट करेंगे. देन आफ्टर दैट दे विल प्रोवाइड यू प्रोविजनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन. सो यहाँ पर 3 ब्रॉड कैटेगरी बेसिकली रजिस्ट्रेशन का, जिसमें से पहला जो है द फर्स्ट वन इज अप्लाइंग फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन. अप्लाइंग फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन. अप्लाइंग फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर SSI सर्टिफिकेट मिलता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आपकी इंडस्ट्री को शुरू होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोविजन के लिए. उस एप्लीकेशन के बाद आपका एक फिजिकल इंस्पेक्शन होगा और उसके बाद आपकी इंडस्ट्रीज को बेसिकली रजिस्टर करके एक SSI सर्टिफिकेट मिल जाएगा. तो ये तो एक पहला एक कैटेगरी ये हो गया, अप्लाइंग फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन. ठीक है, अप्लाइंग फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पहला हो गया. सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या होगा, सेकंड जो है कैटेगरी लिखिए इसमें. सेकंड कैटेगरी क्या होगा, स्टार्टिंग द बिजनेस. स्टार्टिंग द बिजनेस. स्टार्टिंग द बिजनेस. अब ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ना, दिस इज वैलिड फॉर ओनली 5 years, यानी 5 साल के लिए आप सिक्योर हो, रजिस्टर्ड हो. ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के थ्रू आप रजिस्टर हो गए 5 साल के लिए. तो यहाँ स्टार्टिंग द बिजनेस पे लिखिए द प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 5 years. द प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 5 years. ठीक है, 5 साल के लिए वैलिड है. एंड यू मस्ट इंश्योर that your enterprise become operational within this time. The provisional certificate is valid for 5 years. The provisional certificate is valid for 5 years, and you must ensure that your enterprise become operational within this time. यानी कि आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पर आपको बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनको बेसिकली प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा एक बार एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करने के बाद. अब उस एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. बट जब आपका एक बार प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया, वो 5 साल के लिए वैलिड है. कोशिश कीजिए उसी 5 साल में अपने इंडस्ट्रीज को ऑपरेशनल बना लीजिए, यानी कि आप बिजनेस इंडस्ट्रीज को शुरू कर लीजिए. वंस यू गॉट रजिस्टर्ड, प्लीज स्टार्ट टू बिजनेस या इंडस्ट्रीज एज सून एज पॉसिबल. 5 साल के भीतर ही कोशिश कीजिए, स्टार्ट कर लीजिए बिजनेस. ठीक है, नेक्स्ट वन, ये तो एक प्रोविजनल था. वी कैन से दिस वन वाज द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, मतलब एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है. तो यहाँ 5 साल के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा. एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी है, वो क्या है लिखिए इसमें. अप्लाइंग फॉर द परमानेंट SSI, द थर्ड वन इज applying for a permanent SSI, certificate of registration, applying for a permanent SSI certificate of registration. ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो बेसिकली इंटरप्राइज है वो ऑपरेशनल हो गया 5 साल में. अब आप परमानेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और ये किसके थ्रू होता है, दिस इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs. यानी मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs के थ्रू आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कर सकते हो अपनी इंडस्ट्रीज का. ठीक है, और अभी कुछ और भी चीजें हैं जैसे उद्योग आधार वगैरह जो है, जहां पर आपको SSI रजिस्ट्रेशन में कोई भी पेपर वर्क में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा. आपको सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम डालना है और कुछ फॉर्म 11 भर के आपको स्टार्ट करना है. अब इसमें क्या होता है मैं बताती हूँ. लिखिए इसमें अप्लाइंग फॉर द परमानेंट SSI सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. लिखिए, if your enterprise becomes operational within 5 years, if your enterprise becomes operational within 5 years, you can apply for permanent certificate, and this is done through Ministry of MSMEs. ठीक है,
And now there is a one more facility which is started by the उद्योग आधार. एक उद्योग आधार नाम का एक बेसिकली साइट है, उद्योग आधार है, ठीक है, जहां पर लिखिए उद्योग आधार. उद्योग आधार में आगे लिखिए द SSI रजिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ पेपर वर्क. ठीक है, अब ये उद्योग आधार है जिसके थ्रू अब आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रजिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब जो हम ट्रेडिशनल वे में जो करते थे इंडस्ट्रीज को रजिस्टर, नाउ द सिनेरियो इज चेंज, राइट. और यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना है, एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम को फिल करना है. इसमें लिखिए इन उद्योग आधार, the SSI registration process in Udyog Aadhaar, the SSI registration process does not involve a lot of paperwork. क्या करना होगा? बस simply fill out the entrepreneur memorandum, ठीक है, entrepreneur's memorandum, simply fill out entrepreneur's memorandum, ठीक है. सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम को आपको फिल करना है, खत्म, आपकी स्टोरी खत्म, वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम को फिल करके. और पहले क्या था कि आपको डिफरेंट 11 फॉर्म फिल करना पड़ता था रजिस्ट्रेशन के लिए. 11 form was filled earlier for registration procedure, but nowadays you only need to basically register the entrepreneur memorandum को आप fill कीजिए, जो आपको उद्योग आधार में easily available होगा, and then after that you can easily apply for the permanent registration of the small scale industries. तो ये आपके कुछ थे प्रोविजनल सर्टिफिकेट के, और परमानेंट वे में आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है. और अगर मैं आपके बुक से कुछ पॉइंट्स देखूं तो आपके बुक से मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ. प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है. सो आई गेस ये थोड़ा सा अर्लियर वाले चीजें दी हुई है, पहले जो चलता था रजिस्ट्रेशन उसके बारे में दिया हुआ है कि आपको जो है मतलब प्रोसीजर जो है रजिस्ट्रेशन का, इसमें कुछ शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, कुछ लाइसेंसिंग एग्जाम्पशंस, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है ये बेसिकली वही प्री ऑपरेटिव पीरियड में आपको बेसिकली मिल सकता है. वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन के हेल्प के लिए बेसिकली आपको प्रोवाइड किया जा सकता है. इसके लिए आपको आपकी फैसिलिटीज जो है, एकोमोडेशन, लैंड, ये सबको इंस्पेक्ट करवाना पड़ेगा. इंस्पेक्शन विल बी देयर. उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जब रेगुलेटरी बॉडीज जो है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लेबर रेगुलेशंस, ये सब जितने भी हैं सबके द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा आपकी इंडस्ट्रीज का. अगर वहां पॉल्यूशन का कुछ पाया जाता है कि पॉल्यूशन जो है एक मिनिमम लेवल से हाई है, तो इन दैट केस यू विल नेवर गेट द NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. सो वंस यू विल क्लियर ऑल द बेसिकली रेगुलर जितने भी आप इंस्पेक्शन है आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे आपके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू होता है, लेबर रेगुलेशंस के थ्रू होता है, व्हेन दे आर सेटिस्फाइड, व्हेन यू आर एबल और कैपेबल फॉर डूइंग एवरीथिंग इन प्रॉपर वे, सब कुछ ठीक है, in that case you will get the NOCs, and after that you will get the provisional certificate from the government. ठीक है, आपको फिर वहां से ऐसे तो DICs के थ्रू होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है, then you will get that basically provisional certificate. ठीक है. So provisional registration certificate का वही सारी चीजें, यहाँ पर इंस्पेक्शन होगा पहले, फिर आपको जाकर के क्या मिलेगा? प्रोविजनल सर्टिफिकेट. परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उससे क्या क्या इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब व्हाट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स यू विल गेट व्हेन योर इंडस्ट्री इज परमानेंटली बेसिकली रजिस्टर्ड. तो इसमें कुछ चीजें मिलेंगी. इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, सेल्स टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से. मैंने क्या बोला कि इंडस्ट्रीज जो स्मॉल इंडस्ट्री दैट इज अ कॉल ऑफ स्टेट, तो इन दैट केस यू विल गेट सम एग्जम्पशन ऑफ द सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स, and some incentives and all those things are provided. Prices and the preference of goods will basically provided या produced. वही रॉ मटेरियल वगैरह अगर हो सके तो पॉसिबल है कि वो आपको प्रोवाइड किया जाए एग्जिस्टिंग पॉलिसी को देखते हुए. और परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो टाइनी यूनिट कौन होते हैं? टाइनी यूनिट जिनका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट का, दैट इज 25 लाख. तो 25 लाख रुपए जो होते हैं, अगर ये टाइनी यूनिट है, मतलब आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में टाइनी यूनिट है, तो ऐसे केस में आपका जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो होगा वो भी रिन्यू करवाना पड़ेगा 5 साल में. मतलब दैट दिस एग्जाम्पशन
exemption case only applied for the tiny industries, right? So अगर आपका कोई industry tiny industry है, तो in that case you just need to renew that after 5 years. Means permanent registration का scope शायद नहीं है tiny industries में. Clear हो गया? समझ में आया? Point जितने भी मैंने बताए सबको clear हुआ? Anyone have any doubt whatever we studied? किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? बिकॉज में अब आगे बढ़ रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. एनीवन हैव एनी डाउट? The various documents required for SSI registration. लिखिए. What are the various documents required for SSI registration? SSI registration में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है? Provisional certificate registration and permanent certificate registration clear हो गया? क्लियर हो गया? PRC, प्रोविजनल एंड परमानेंट क्लियर हो गया सबको? ओके. व्हाट आर द यस में बेटा क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपनी इंडस्ट्री को शुरू नहीं की है, ठीक है, और इंडस्ट्री को शुरू नहीं करने से पहले यू कैन अप्लाई फॉर द प्रोविजनल सर्टिफिकेट. प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्यों? 5 साल के लिए वो पीआरसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो आपके 5 साल के लिए बेसिकली एक तरीके का सर्टिफिकेट है. दैट इज ओनली वैलिड फॉर 5 years. दैट इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी, एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है, ठीक है, कि आप अपने बिजनेस को शुरू करें, वर्किंग कैपिटल इंसेंटिव्स के लिए, सब्सिडीज के लिए आपको रजिस्टर होना जरूरी है. तो ऐसे केस में आपका जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है वो 5 साल के विद इन होता है जब आप ऑपरेटिव हो जाते हो तब. तो ऑपरेटिव नहीं हो यानी आपका इंडस्ट्री नहीं चल रहा है, उससे पहले आप पीआरसी यानी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो. एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो 5 साल के विद इन आपको क्या बनना है? आपको ऑपरेटिव बनना है, यानी 5 years के विद इन आपको अपने इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर देना है. अगर आपने 5 साल के अंडर में अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट कर दिया तो आफ्टर 5 years यानी 5 साल के बाद आप क्या कर सकते हो? परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो. परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका पूरा लाइफ टाइम के लिए आपका इंडस्ट्री जो है वो क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड हो जाएगा. और बस टाइनी इंडस्ट्री जो है उसको आपको 5 साल में बार बार रजिस्टर करवाना पड़ेगा. मींस दैट देयर इज वन एग्जम्पशन केस या एग्जम्पशन है आपके टाइनी इंडस्ट्रीज के लिए कि उसको 5 साल में आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा. देयर इज नो परमानेंट स्कोप फॉर दैट. और टाइनी इंडस्ट्रीज कौन होंगे? जिसका 25 लाख रुपए तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है इंडस्ट्री में. क्लियर हो गया बेटा? बलराम? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. चलिए, what are the documents which are required for SSI small scale industries registration में क्या क्या जरूरत पड़ेगा? तो सबसे पहले फर्स्ट जो है लिखिए इसमें, फर्स्ट क्या जरूरत पड़ेगा? फर्स्ट proof of business address. Proof of business address. Proof of business address. Proof of business address. यानी कि आपने जहाँ इंडस्ट्री को शुरू किया है, जो आपका ऑफिशियल एड्रेस है, उसका प्रूफ चाहिए होगा. ठीक है, कि आपका इंडस्ट्री जो है आप सेटल कहाँ करना चाह रहे हो, कहाँ शुरू करना चाह रहे हो, उसका एक ऑफिशियल एड्रेस, एक एड्रेस प्रूफ. ठीक है, सो प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस चाहिए. नेक्स्ट, सेकेंड वन, परचेज बिल कॉपीज. परचेज बिल कॉपीज यानी आपने जो भी मशीनरी वगैरह परचेज किया है या जो भी आपने इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए कोई भी चीज लैंड लिया है या अगर आपने कुछ रॉ मटेरियल भी लेना शुरू कर दिया है, ठीक है, आप ऑपरेटिव नहीं हो बट यू कैन मेक द परचेज, राइट. अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है, अगर आपने कुछ परचेज वगैरह किया है तो उसकी परचेज की बिल कॉपीज यानी सेकेंड वन इज परचेज बिल कॉपीज. ठीक है, परचेज बिल कॉपीज. अब किसके किसके परचेज बिल कॉपीज चाहिए तो डैश देकर लिखिएगा, रॉ मटेरियल्स के एंड मशीनरी के. रॉ मटेरियल्स एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल एंड मशीनरी. ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब और भी चीजें जो भी आपका एक्सपेंस लगा है इंडस्ट्री को शुरू करने में, वो जितने भी आपके बिल जनरेट हुए हैं वो सारे बिल की कॉपीज भी आपको कहाँ देना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यू हैव टू गिव इट टू द रजिस्ट्रार. ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हो गया परचेज बिल ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीनरी. सेकेंड वन, थर्ड वन इज पार्टनरशिप डीड इफ एनी. पार्टनरशिप डीड क्या होता है जिसके बारे में आप लोग को मैंने पहले भी क्लास में बताया है. That is a written agreement if your firm is started in the partnership. अगर आपने इंडस्ट्रीज को पार्टनरशिप में शुरू किया है, अगर आपके पास कोई भी पार्टनरशिप या एग्रीमेंट है, written agreement is there, तो in that case you need to submit or deposit it to the DICs
when you are registering your industry. अगर आप अपनी इंडस्ट्री को रजिस्टर करा रहे हो तो ऐसे केस में अगर पार्टनरशिप के थ्रू आप एंटर कर रहे हो इंडस्ट्रियल वर्क में, इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, तो पार्टनरशिप डीड अगर है तो आपको उसको भी लगाना पड़ेगा। स्लैश देखिए लिखिए स्लैश AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी एंड ऑल। अगर आप कंपनी फॉर्म को यूज करके इंडस्ट्री ओपन कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी सबमिट करनी पड़ सकती है। यानी कि whatever is required, whatever kind of business organization you opted, either that is a company, either that is a partnership firm, either that is a sole proprietor, and if you will start it through that, अगर आपने शुरू किया इंडस्ट्रीज को इसके थ्रू, तो ऐसे केस में you just need to submit the partnership deed and साथ में AOA और MOA। if you मतलब कोई भी इन सब चीजों में से आपको डिपॉजिट या सबमिट करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज NOC, non objection certificate, non objection certificate from the pollution control committee, from the pollution control committee, from the pollution control committee, partnership date slash AOA and MOA. The next one is NOC, non objection certificate from the pollution control committee, from the pollution control committee। यानी कि ये सारे आपको जरूरत पड़ेगी क्या चीज के, बेसिकली आपको ये सारे प्रूफ्स और आपके डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर करने में किसके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। क्लियर हो गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? सबको समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? एनीवन हैव एनी डाउट? तो बेसिकली हम TRC की बात कर रहे थे, तो अब हम और भी स्कीम्स और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं बेसिकली रजिस्ट्रेशन का। एक सेकंड पढ़ते हैं इसके बारे में। तो रजिस्ट्रेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि देयर विल गेट द टैक्स एग्जम्पशन, सब्सिडीज, इंसेंटिव्स, लाइसेंस, पेटेंट्स विल गेट बेनिफिट्स फ्रॉम सो मेनी टर्म्स विल गेट द बेनिफिट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है रजिस्ट्रेशन स्कीम का? वही सेम चीज है। बेसिकली ये जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है या रजिस्ट्रेशन जो स्कीम है, इसमें आप स्मॉल इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव्स और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। यू कैन आल्सो प्रोवाइड देम सर्टिफिकेट ताकि वो बाद में प्रोटेक्शन मतलब एक तरीके से प्रोवाइड किया जाए, लीगल प्रोटेक्शन विल बी देयर विद द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और ये जो आपका एक तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है ना, दैट इज इनेबल द गवर्नमेंट टू बेसिकली मेंटेन द स्टैटिस्टिकल डेटा एज वेल। यानी स्टैटिस्टिकल डेटा आप मेंटेन कर सकते हो कि कितने सारे हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है, ठीक है। सो इट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द गवर्नमेंट इफ यू विल डू द रजिस्ट्रेशन वर्क। इन दैट केस द गवर्नमेंट विल easily analyze that how many industries are present in the rural areas, urban areas, which areas have still less industries. So for the survey basis and for the data and for the economic growth, we can able to basically collect the data of this। कितने आपके अगर रजिस्टर्ड नहीं होंगे, अब जैसे क्या हुआ था आपके कोरोना कोविड वाले केस में, बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ, उन लोगों ने टेस्ट नहीं करवाया। जब टेस्ट नहीं करवाया तो पता ही नहीं लगा कि उनको था कोविड या नहीं था। तो ऐसे सोचो कितने सारे लोग हो गए, तो गवर्नमेंट को उनका डेटा पता ही नहीं होगा। तो सेम थिंग इज हियर कि लाइक यहाँ पर जितनी इंडस्ट्रीज हैं अगर वो रजिस्टर कराते हैं तो ऐसे केस में द गवर्नमेंट विल गेट द स्टैटिस्टिकल डेटा और मेंटेन द स्टैटिस्टिकल डेटा। नेक्स्ट जो है ये बेसिकली हर एक एरिया मतलब हर एक जो गवर्नमेंट का लेवल है, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब जगह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। मतलब इन एवरी मतलब हर एक एस्पेक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट भी प्रमोट करती है, स्टेट भी प्रमोट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है स्कीम के, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रजिस्ट्रेशन की स्कीम के क्या क्या फीचर्स हैं? बेसिकली ये जो आपका DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो है, ये प्राइमरी रजिस्ट्रिंग सेंटर होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एरियाज में। रजिस्ट्रेशन जो होगा वो वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब है कि अपनी मर्जी से, इट्स टोटली अप टू यू दैट यू वांट टू रजिस्टर योर इंडस्ट्री और नॉट। सो इट इज टोटली अप टू यू एंड नॉट कंपल्सरी लाइक कंपनी हैव अ कंपल्सरी कि उसको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही कराना है, कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन वही अगर आपका इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो दैट इज टोटली ऑप्शनल। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर जो दो तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं जो स्टेट्स में होते हैं, मतलब टू टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन इज डन
दोनों सुविधा दी जाती है इंडस्ट्रीज को। पहले बिजनेस को कमेंस करने से, इंडस्ट्री को शुरू करने से पहले यू कैन अप्लाई फॉर पीआरसी प्रोविजनल एंड विद इन 5 years यू कैन अप्लाई फॉर द परमानेंट वन। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि जो वही पीआरसी जो है वो 5 साल के लिए वैलिड है, वही आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है, आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल फॉर 5 years एंड परमानेंट रजिस्ट्रेशन इज गिवन अ परपेचुइटी। परपेचुइटी का मतलब क्या होता है, यानी वो चलता रहेगा, मतलब दैट इज इन द परमानेंट वे। जितने साल तक इंडस्ट्रीज है वो रजिस्ट्रेशन जो है दैट इज द वैलिड वन, जितने साल तक आपका है उतने साल तक दैट इज वैलिड। फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है मैंने बता दिया। परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होगा कि आगे चल के 5 साल के बाद आपको कोई टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा, आपको सेल्स टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेगा, परचेज करने में रॉ मटेरियल यू विल गेट सो मेनी इंसेंटिव्स एंड ऑल। अब प्रोसीजर जो है बेसिकली रजिस्ट्रेशन का आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर एक डी रजिस्ट्रेशन आता है। डी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर स्मॉल स्केल यूनिट जो है वो कुछ वायोलेट करती है रेगुलेशन, यानी गवर्नमेंट के फिक्स्ड रेगुलेशन को वायोलेट करना मतलब तोड़ रही है, खराब कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में दे आर लाइबल फॉर द डी रजिस्ट्रेशन। यानी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है कि भाई 1 करोड़ रुपए तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होना चाहिए। इफ दे आर नॉट फॉलोइंग दैट और मे बी जो अमाउंट है वो एक्सीड कर जाएगा, तो ऐसे केस में उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पड़ सकती है, यानी कि सेकेंड टाइम दे हैव टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो उसी को हम कहते हैं डी रजिस्ट्रेशन। इफ कौन कौन से केस में डी रजिस्ट्रेशन करवा सकती है कंपनी, व्हेन द इन्वेस्टमेंट लिमिट्स जो है वो बढ़ जाएगा तब करवा सकती है। ठीक है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नए आइटम का करती है और उसके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे केस में डी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है। अगर कुछ गवर्नमेंट की जो है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स का मतलब वो क्या होते हैं, भाई आपके डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज है, अगर उनको उनकी कंडीशंस को आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो ऐसे केस में हो सकता है कि आपको डी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पड़े। यस पीयूष, रेगुलेटरी बॉडीज हो सकता है कि आगे चल के आप उस चीज को फॉलो ना कर रहे हो। ऐसे केस में व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वायोलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच इज मेंशन्ड बाय द गवर्नमेंट। सो इन दैट केस यू आर रिक्वायर्ड फॉर द डी रजिस्ट्रेशन। क्यों डी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है, और हो सकता है कि गवर्नमेंट बीच में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले भी ले या फिर उसको रजिस्ट्रेशन से हटा भी दे। इट माइट बी पॉसिबल। Deregistration is something where you just need to register your industry once again. ठीक है, तो ये कौन-कौन से केस में हो सकता है, जब आपका लिमिट जो है, जो एक प्रेस्क्राइब लिमिट है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, उसको आपने क्रॉस कर लिया। सेकंड, अगर आपने कोई नए प्रोडक्ट वगैरह को आप लेकर आए और आपको उसकी लाइसेंस करवाने की जरूरत है, लाइसेंसिंग की जरूरत है, तो ऐसे केस में you just need to require the registration procedure. Or it might be possible that if you are not satisfying the condition which is prescribed by the different regulatory bodies of India या government, regulatory bodies of government के द्वारा जो भी दिए गए prescribed conditions उसको fulfill नहीं कर रहे हो, तो ये कुछ deregistration के procedure थे। ठीक है, अब यहाँ पर choosing the legal form of new venture, जो हम लोगों ने last class में already सारे public company, private company वगैरह कर लिया है। इन नेक्स्ट क्लास हम कोशिश करेंगे हम लोग फ्रेंचाइजी शुरू करें, एंड फिर एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे रेडी होता है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। ठीक है, ओके। एनीवन हैव एनी डाउट इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? एनीवन हैव एनी डाउट इन द प्रोविजनल, परमानेंट? एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, so who is going to tell me that what kind of benefit the small industries will get if they will got registered? What kind of benefit are provided to them? Who is going to tell me about it? Raise your hand. What kind of benefits are provided to the small scale industries in the case if they are registered? Yes, rule number 22. Ma'am, reduce bank loan and interest rates, easy access to credit, access to government tenders, concession and rebates that reduce the cost of acquiring patents, preference of government certification and license, and state government incentives. Yes, Varsha. Varsha, there are two kind of registration procedure which is required for registering the small scale industry.
The first one is that maybe you can apply for the provisional registration certificate. The provisional registration certificate is the procedure where you will get some temporary registration of your industry. That is only valid for 5 years, but that is very much suitable because for 5 years you will basically use that certificate for getting so many incentives like working capital incentives, raw material incentives and all. But when you will get the PRC yani provisional registration certificate, you have to become operative within that particular 5 years. यानी 5 साल के within ही आपको क्या बनना पड़ेगा, operative बनना पड़ेगा. If you will become operative within the 5 years, then you are liable for then you are basically eligible for registering yourself as the permanent registration certificate you will get. 5 साल के within में आप क्या कर सकते हैं, एक बार आपने business शुरू कर दिया PRC के साथ, provisional वाले के साथ, देन आप परमानेंट के लिए अप्लाई कीजिए और एक बार जब परमानेंट वाला आप अप्लाई करोगे उसके बाद यू विल परमानेंटली आपको परमानेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा. बट प्रोविजनल के लिए देयर आर सम थिंग्स लाइक इंस्पेक्शन होगा आपके बिल्डिंग वगैरह का, आपके एरिया का. एक प्रोविजनल एप्लीकेशन सर्टिफिकेट आपको फिल करना पड़ेगा. ठीक है. सो अभी जो है परमानेंट वाले के लिए तो बहुत इजीली आप उद्योग आधार के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकते हो और वो क्या है कि आपको सिर्फ अप्लाई करना है किस चीज के लिए, आपको एक एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम फॉर्म होगा उसके लिए अप्लाई करो और एमएसएमई के थ्रू आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा. समझ में आया वर्षा? मैम ऐसा कंपलसरी नहीं ना है, मतलब जो इंडस्ट्री है. No, it is not compulsory. It is totally voluntary. If you want to get registered, then that is totally fine. If you don't want to get registered, that is totally fine. Clear हो गया? मैम मेरा मतलब पहले प्रोविजन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तब परमानेंट, तो डायरेक्ट परमानेंट. सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री शुरू करना है, आपने अपना लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी जो भी लेना था, जो भी था आपने अपना देखना शुरू किया. ठीक है. आप उसके बाद फिर आपने क्या करना है, पीआरसी के लिए अप्लाई करना है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए. वहां पर आपका बिजनेस इंडस्ट्री काम करना शुरू नहीं किया है, लेकिन आपको पीआरसी मिल जाएगा. जैसे ही पीआरसी मिलेगा आप अपना काम शुरू कर दो, इंडस्ट्री को चालू कर दो. इंडस्ट्री को चालू किया, 5 साल हुआ, 5 साल के विदिन फिर आप परमानेंट वाले के लिए अप्लाई कर सकते हो. यानी पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर बिजनेस को स्टार्ट करो, फिर परमानेंट सर्टिफिकेट मिलेगा. क्लियर हो गया वर्षा? यस मैम क्लियर है. यस पीयूष? मैम अगर रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया जाए तो गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट को जो पेनाल्टी है उसको से मतलब रिकवर जैसे नॉर्मल इंडस्ट्रीज आपकी चल रही है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, जैसे बाकी इंडस्ट्रीज है जो नॉन रजिस्ट्रेशन वाले, नॉर्मल जिस सबके लिए जैसे आपको कमर्शियल लोन, नॉर्मल टैक्स वगैरह जो भी है आपका, जो नॉर्मल आपके इंटरेस्ट वगैरह वो सब कुछ आपको पे करना पड़ेगा नॉर्मल. बट आपको गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स, टैक्स एग्जाम्पशन, ये सब चीज की सुविधा आपको नहीं मिलेगी. आगे बात समझ में पीयूष? यस मैम. जैसे मैम अगर कोई मैम जैसे छोटा सा अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अगर वो 5 साल से मतलब अच्छा पैसा अर्न कर रहा है और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, अगर गवर्नमेंट से नहीं करवाया है, तो क्या क्या पेनाल्टी ले सकता है? पेनाल्टी को आपकी इंडस्ट्री पे अगर कोई गवर्नमेंट के थ्रू या कहीं पर भी केस हो गया या फिर कोई लीगल पिटीशन या कुछ ऐसा आ गया, आपका पीआईएल हो गया, पब्लिक लिटिगेशन वाला, जो अगर आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जैसे गवर्नमेंट को अप्लाई, मतलब बहुत सारे पब्लिक मिलके आपके इंडस्ट्री के खिलाफ उन्होंने आपको क्या करते हैं, केस करते हैं. तो ऐसे केस में कुछ बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, जैसे आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपके पास कोई एविडेंस. मीट इन द नेक्स्ट क्लास. एनीवन हैव एनी डाउट व्हाटएवर वी स्टडी टुडे? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द फ्रेंचाइजी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइजी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी and what kind of companies are using the franchisee. So we are going to cover all these topics in the next class. Anyone have any doubt whatever we discussed today? किसी को कुछ पूछना है? Anyone have any doubt? Okay. So see you all in the next class on Wednesday. ठीक है, एक बार साथ. Okay, see you all in the next class on Wednesday. Thank you, ma'am.